Hello students, my name is Ashish Gupta. I serve in PP Savani Center for Excellence as chemistry teacher. PP Savani Center for Excellence is Gujarat's #1 educational institute. It functions to prepare science students for national level competitive examinations. Students, welcome to the class. In this lecture, I will discuss with you advanced level topics from the chapter mole concept. In this lecture, we will cover various topics from entire chapter which are of importance with respect to your advanced exam, JEE advanced, and we will discuss few numericals as well for that concern. स्टार्ट करते हैं। इसके पहले के लेक्चर में हमने वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सीखा और दूसरे एडवांस लेवल के टॉपिक्स जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन और परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम, ये चीज़ें सीखी हम लोगों ने। इस लेक्चर में हम कुछ और नए टॉपिक्स जो कि एडवांस लेवल के होंगे उन्हें कवर करने जा रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मीन मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास। मीन मोलर मास कैसे फाइंड करेंगे? The average molar mass of different substances present in the container. M1, M2 are molar masses and N1, N2 are their moles. Then N1, M1 plus N2, N2 plus NN etc. will give mean molar mass या कि average molar mass. For example, the molar composition of polluted air is oxygen 16%, nitrogen 80%, CO2 3% and SO2 1%. What is the average molecular mass of polluted air? Right? तो for gases so for above given problem, average molecular mass is equal to mass of moles of oxygen, that is 16, into molar mass of oxygen, that is 32, plus mass of nitrogen, moles of nitrogen, that is 80, into molar mass of nitrogen, that is 28, plus moles of CO2, that is 0.3, molar mass of CO2, that is 44, plus moles of SO2, that is 0.1, into molar mass of SO2, that is 64, divided by total. So total is 100. So divide by 100, total number of moles. Mole percent and mole is same, and here it is similar to that of average atomic mass. So this is equal to 512 plus 2240 plus 132 plus 64 divide 100 is equal to 29.48. Next topic we will consider is law of reciprocal proportion, or also called law of equivalent weight.
सो इस कंडीशन में आपको ऐसा एक ट्रायंगल बनाना है, 3 एलिमेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं इस लॉ में। तो ये लॉ क्या कहता है, आप किस ट्रायंगल में किसी भी कॉर्नर से स्टार्ट कर सकते हो, चाहे तो यहाँ से स्टार्ट करो, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, ठीक है। मैं यहाँ से स्टार्ट करना पसंद करता हूँ। तो व्हेन कार्बन कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अ कंपाउंड एंड कार्बन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ कंपाउंड, देन mass ratio of carbon and oxygen and carbon and hydrogen. What mass ratio comes? The mass ratio when hydrogen combined with oxygen will be same of this mass ratio of will be same as this mass ratio, or will be whole number multiple of this mass ratio. The ratio of molecular weights of two elements A, B, which combine with fixed mass of C, either remain same or whole number multiple of this. चलिए, तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एग्जाम्पल लेके क्लियर कर लेते हैं। पहले स्टेटमेंट, when a fixed mass of A combines with different masses of B and C, the mass ratio of B and C is equal to X. When B and C combine to each other, their mass ratio is either X or whole number मल्टीपल ऑफ एक्स। तो पॉइंट क्लियर है, जब ए कंबाइन होगा बी और सी से, जिसमें ए का मार्क्स फिक्स है, तब बी और सी के मास का रेशियो मान लिया कि एक्स है। अब जब बी और सी आपस में कंबाइन होंगे तो उनका मास रेशियो या तो एक्स होगा या तो एक्स का होल नंबर रेशियो होगा। हमारे पास 3 एलिमेंट हैं ए, बी और सी, तो इनका एक ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल बनाना एक अच्छी स्ट्रेटजी रहेगी। चलिए, तो एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो ट्रायंगल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। ए कंबाइन विद बी, C plus O2 gives CO2,
and A combined with C plus 2H2 gives CH4. Fixed mass of A that combines with different mass of B when B and C combine, mass ratio of B and C O2 divided by H2 equal to 32 divided by 4 is equal to 8 is equal to X. So mass ratio of B and C, that is equal to X. When B and C combine to each other, their mass ratio will be either X or whole number multiple of X. तो H2 हो गया 4 और O2 हो गया 32. तो B and C का जो मास रेशियो होगा B upon C is equal to O2 upon H2 is equal to 32 upon 4 is equal to 8. तो B upon C का जो रेशियो होगा वो या तो X होगा या तो फिर X का होल नंबर मल्टीपल होगा. ये हो गया लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. चलिए अब नेक्स्ट है परसेंटेज यील्ड. परसेंटेज यील्ड को कैसे डिफाइन करते हैं? एक्सपेरिमेंटल यील्ड इनटू 100 अपॉन कैलकुलेटेड यील्ड, राइट. तो सपोज कि Mg का रिएक्शन हुआ सल्फर से, 1 मोल Mg 1 मोल सल्फर, हम कितना एक्सपेक्ट करते हैं? 56 ग्राम ऑफ MgS, इतना हम एक्सपेक्ट करते हैं. पर मान लीजिए कि मिला है 50 ग्राम, तो क्या हो जाएगा फार्मूला? एक्सपेरिमेंटल यील्ड मतलब 50 इंटू 100 अपॉन कैलकुलेटेड यील्ड मतलब 56, तो हो जाएगा 89.28%. चलिए यहाँ से मोल कॉन्सेप्ट के सारे टॉपिक कवर, कोई भी टॉपिक बाकी नहीं रहा. हर टॉपिक में जो फार्मूला दिया है वो फार्मूला की आपको अलग से एक लिस्ट बनानी है एक सेपरेट पेपर पे. बाद में मैं कभी प्रोवाइड करूँगा, लेकिन वो तो मेरा काम है. आपका काम ये है कि आप अभी जितने फार्मूला यूज़ हुए हैं वो सब फार्मूला की एक लिस्ट बनाओ और उनको याद करो, ठीक है. अब इस लेक्चर में अभी हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं. हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. 27 ग्राम ऑफ Al will react completely with how many ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, राइट. तो 27 ग्राम ऑफ Al चलिए तो स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को. Al2O3, तो 54 ग्राम ऑक्सीजन कितने से कंबाइन कर रहा है? 48 ग्राम से. तो 27 ग्राम कितने से करेगा? 24 ग्राम से. दैट इज द आंसर, राइट. चलो अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. A compound was
A compound was found to contain nitrogen and oxygen in ratio 28 gram ratio 80. तो नाइट्रोजन इज इक्वल टू 28 ग्राम and oxygen is equal to 80 gram. The formula of the compound nitrogen 28, तो 28 upon 14, nitrogen 28 upon 14 is equal to 2 atoms, और ऑक्सीजन 80 upon 16 is equal to 5 atoms. तो क्या हो गया फार्मूला N2O5. नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम, ये लास्ट है, चैप्टर पूरा हो चुका है. अभी कुछ आपको रिवीजन करा देता हूँ प्रॉब्लम सॉल्व करके, जिससे आपको मज़ा आ जाए. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं. चलिए लेट्स स्टार्ट. द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम नहीं पूछ रहा है, मॉलिक्यूल पूछ रहा है. इसमें कितना मॉलिक्यूल है? 36 अपॉन 18 इज इक्वल टू 2 मोल. याद है MF और MRF, मोल रिमेन फर्स्ट. सबसे पहले मोल के बारे में सोचना है. अगर वहाँ से काम नहीं होता है तब कुछ और सोचना है, क्योंकि 99% में काम हो जाता है मोल से. तो ए में हो गया 2 मोल मॉलिक्यूल्स, बी में 28 ग्राम CO, तो 28 अपॉन 28 इज इक्वल टू 1 मोल. फिर सी में 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल, 46 अपॉन 46 is equal to 1 mole. Last 54 gram N2O5, 54 upon N2O5 मतलब 28 और 80, तो 108 डिवाइड बाय 108 मतलब 0.5 मोल. तो क्लियर है आंसर 36 ग्राम H2O, जिसमें कि 2 मोल मॉलिक्यूल हैं. अभी नंबर 4 सॉल्व करते हैं. The total number of electrons in 1 mole of carbon dioxide is, तो CO2 कितना हो गया? CO2 हो गया 1 मोल, 1 मॉलिक्यूल. कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन? 6. ऑक्सीजन में कितने? 8 × 2 इक्वल टू 16. तो आंसर हो गया 16 + 6 मतलब 22 इलेक्ट्रॉन्स in 1 molecule of CO2.
gaseous mixture contains oxygen and nitrogen in ratio 1:4 by weight. तो O2 कितना है? O2 इक्वल टू 1 ग्राम और N2 कितना है? N2 है 4 ग्राम. Therefore the ratio of number of molecules, तो नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स दोनों एक ही बात है, ठीक है, जहाँ तक रेशियो को कंसर्न करते हैं. तो 1/32 और ये तो हो गया NO2 और N2 हो जाएगा 4/28. तो देयर रेशियो मतलब NO2/NN2. चलिए फार्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए. NO2/NN2 इज इक्वल टू 1/32/4/28. तो 4 7 या 28, ठीक. तो क्या हो जाएगा आंसर? 7/32. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. Go for question number 6. चलिए 2 ये पॉइंट लगाना भूल गए. 2.76 ग्राम Ag2CO3 सिल्वर कार्बोनेट इज स्ट्रांगली हीटेड yields रेसिड्यू वेइंग. तो जब Ag2CO3 को हीट करेंगे तो बन जाएगा CO2 प्लस हाफ O2 प्लस 2Ag. तो ये होता है 216 ग्राम 276 ग्राम. ये है 44, ये है 16 और ये 108 इंटू 216. तो 276 ग्राम Ag2CO3 gives 216 ग्राम Ag यहाँ पे क्या है? Ag यहाँ पे रेसिड्यू. तो अब क्वेश्चन में क्या रखा है? 2.76. 2.76 से कितना मिलेगा? 216 इंटू 2.76/276 कितना हो जाएगा? 2.16. एक लास्ट प्रॉब्लम और सॉल्व कर लेते हैं, फिर चैप्टर को एंड करते हैं. ट्रिकी प्रॉब्लम है लास्ट वाला. चलो तो लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इस चैप्टर के लिए. आपको तो सॉल्व करते रहना है प्रॉब्लम, मैं आपको हेल्प करता रहूँगा, बट अभी मेरी तरफ से लास्ट प्रॉब्लम. M is molecular weight of KMnO4. KMnO4 का molecular weight M है. The equivalent weight of KMnO4 WeQ KMnO4 is question mark when it is converted to K2MnO4. K2MnO4. अब समझना ये है कि यहाँ पे रिएक्शन कौन सी हो रही है, ठीक.
अब यहाँ पे mn है +7 और यहाँ पे mn है +6, तो गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसका वैलेंस फैक्टर, तो वैलेंस फैक्टर इक्वल m अपॉन वैलेंस फैक्टर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड, तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलर मास अपॉन वैलेंस फैक्टर। मोलर मास दिया है 1, वैलेंस फैक्टर हो गया 1, तो इक्विवेलेंट वेट हो गया m। कौन सा ऑप्शन? ये ऑप्शन ए। चलिए, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। देखते हैं हमने इस लेक्चर में क्या क्या सीखा। तो हमने इस लेक्चर में सबसे पहले रिवाइज किया परसेंटेज यील्ड, उसके पहले सबसे पहले हमने रिवाइज किया मीन मोलर मास, उसके बाद रिवाइज किया लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, उसके बाद रिवाइज किया सीखा हमने परसेंटेज यील्ड, उसके बाद हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया लेके, तब तक के लिए थैंक यू।